Hi, good morning everyone. Today we are going to read your class 12th history, chapter 7 and imperial capital of Vijayanagar. Class 12th history, the chapter Vijayanagar is very important. Why? Why I am saying? Because if you will see the previous year board paper, where you can easily find the various questions which were directly put up this, ये यहीं से सीधे उठाए गए, पुट अप किए गए, लिए गए. आप देखिए, उठा के सीधे आपके पेपर में रख दिया गया. लाइक व्हाट डू यू मीन बाई अमर नायकास, राइट ए नोट ऑन कृष्णदेव राय, डिस्कस द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर, रॉयल पैलेस, महानवमी डिब्बा, रिचुअल्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ईयर टू ईयर आपके एग्जाम में आए हैं, साल और साल आपके पेपर में आपको दिखे. तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट 2 or 3 videos what I made, it is very useful for you if you see, or if you would have watched, you can easily understand that ki there are so many facts which is useful for your exam. आज इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को, स्पेशली टॉपिक है 2.2 द एपोजी एंड the decline of Vijayanagar. Apogee and decline of Vijayanagar. In this topic, one more which is very important thing which we are going to discuss, that is the time period of Krishnadeva Raya and their work. Without any hesitation, here I want to tell you that Krishnadeva Raya was the very powerful ruler during that time. It was not only the Vijayanagar but also the whole India. This was accepted by Babur, who was founder of Mughal dynasty. बाबर भी इस बात का उल्लेख करता है कि कृष्णदेव राय भारत में जब मैं आया तो उसमें सबसे ताकतवर शासक था. लेकिन जब कृष्णदेव राय गद्दी पे बैठे, when कृष्णदेव राय was enthroned, he faced a lot of difficulties. Actually, Sangam dynasty that was captured by Salu Narsingh, and last Salu rulers was assassinated by Veer Narsingha 1503 to 5, and then after Veer Narsingha ruled on Vijayanagar, third dynasty, Tuluva dynasty, established Tuluva dynasty. After 4 years, he announced that my successor would be Krishnadeva Raya. 1509 to 29, 1529 AD, Krishnadeva Raya became the ruler of Vijayanagar. The regime of Vijayanagar was famous for their prosperity. Vijayanagar during Krishnadeva Raya period, every sector of life, I mean to say that every spheres of life, like war, like peace, like literature, like game, like culture activities, everything that was flourished in Krishnadeva Raya regimes. Various time I told you that Krishnadeva Raya was also the very what? He liked very much chess. वो चेस खेलता था. चेस खेलने वालों को विजयनगर में स्कॉलरशिप दी जाती थी. The general character of Vijayanagar also given in your book. If you read your book, page number 192, where given the Krishnadeva Raya peak, it was explained by Domingo Paes. Domingo Paes was contemporary
The travelers who visited Vijayanagar during Krishnadevaya period, he saw the Krishnadevaya, what he wrote, their body structure, Krishnadevaraya's body structure. कहता है to speculate about some of the problems of the perspective look at the beautiful status of Krishnadevaya placed on the Gopuram of the temple at Chidambaram, Tamil Nadu. This is obviously the new way in which rulers wanted to project himself. कहता है चिदम्बरम मंदिर में कृष्णदेवराय की जो प्रतिमा स्थापित है उसको अभी आप देखें तो कहता है कि एंड दिस इज हाउ पेस डिस्क्राइब द किंग. पेस जैसा कि प्रतिमा बनाई गई है उसी तरीके से एक्सप्लेन करता बताता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को. कहता है कृष्णदेवराय ऑफ मीडियम हाइट and of fair complexion and good figure, rather fat than thin. He has on his face sign of smallpox. कहता है कृष्णदेवराय मध्यम कर्काठी के थे, गोरे थे, चेहरे पे चेचक का दाग था और बहुत ही सुंदर नहीं थे, खूबसूरत नहीं थे. This was explained by Domingo Paez. Okay? तो कृष्णदेवराय के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देता है. But my dear, if you have remembered my previous class, 1st September 2021, where I discussed about the problem of Vijayanagar. In my 1st September video, if you will see, where I mentioned these points, where I discussed that during Krishnadevaraya's regime, 509 to 529 AD, when Krishnadevaraja was enthroned, he faced so many difficulties, like the local rulers, Lugod, Gajapati, who conquered the Udayagiris and that regions. Then after, the ambition of the Bijapur, Bahmanis, that was also against the Vijayanagar. Then after the one new power emerged in India, they were Portuguese. Portuguese was the new power. They tried to establish itself in India. They fortified their factories. During 1498, Vasco da Gama reached India and tried to establish himself. When we will read the trade of the Vijayanagar, I hope you have remembered I discussed that the horse trade, that was a very famous trade. घोड़ों का व्यापार सबसे महत्वपूर्ण था. वो कंट्रोल होता था किससे? अरब के व्यापारियों के द्वारा. व्यापार में उसे कुதிரை और चट्टी कंट्रोल करते थे भारत के जो व्यापारी थे. लेकिन जब पुर्तगीज आ गए, जिन्होंने अपने को मास्टर ऑफ द सी बोला, सागर का स्वामी बोला, उन्होंने उस पूरे व्यापार को कंट्रोल कर दिया. अब पुर्तगीज से भी समझौता करना जरूरी था. यहीं से कृष्णदेवराय ने विजय शुरू की अपनी. उन्होंने सब कुछ जीता. कृष्णदेवराय ने क्या किया आगे देखते हैं. उसके लिए विजय अभियान को during 1509 में कृष्णदेवराय Krishnadevaraja became king of Vijayanagar. He enthroned him on the Vijayanagar. Okay. Then after 1512 AD, time 1512 AD time, he conquered first. किसको जीता उसने?
According to your book, if you read, there clearly mentioned that during 1512, first he conquered the Tungabhadra and Krishna rivers Raichur Dwap. Raichur Dwap. कहाँ थी? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर. ओके, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो रायचूर द्वाब था, पहले उसको उसने जीता. देन आफ्टर 1514 1514 AD गजपति उड़ीसा. गजपति ऑफ उड़ीसा कर लीजिए. 1520 बीजापुर. ओके, 1520 बीजापुर. ये उसकी विजय थी कृष्णदेवराय की. कृष्णदेवराय अपने विद्रोही सामंतों का दमन किया और फिर उसने उदयगिरी को जीता, गजपतियों को पराजित करके. 1520 में बीजापुर को पराजित करके पूरे रायचूर द्वाब पे कंट्रोल कर लिया. रायचूर द्वाब पूरी कंट्रोल हो गई उसकी. इसको पराजित करके बीजापुर को पराजित किया उसने जब तक. ठीक है, और फिर यहीं से उसने क्या किया, अपने प्रभाव को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया. कृष्णदेवराय ने बीदर और गुलबर्गा पे भी आक्रमण किया. बीदर और गुलबर्गा पे आक्रमण करके बैमरी सुल्तान महमूद शाह को फ्री कराया. बीदर है, बीदर है, गुलबर्गा पे भी आक्रमण किया. और बहमनी किंग कौन था उस समय? महमूद शाह. बहमनी किंग महमूद शाह को उसने फ्री कराया. महमूद शाह. बहमनी किंग कौन था? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं. महमूद शाह. बहमनी किंग महमूद शाह को उसने फ्री कराया. और बहमनी किंग महमूद शाह को फ्री कराने के बाद उसने उपाधि टाइटल लिया यवन राज स्थापनाचार्य. यवन राज स्थापनाचार्य उसने टाइटल लिया. दिस वॉज द बैटल विच वॉज कॉन्कर्ड बाई विजय कृष्णदेवराय. ये वो टाइम पीरियड था जब कृष्णदेवराय ने कुछ जीता. अगर आप देखें तो 1520 तक 9 to 20 कृष्णदेवराय गद्दी पे बैठने के बाद 12 to 20 8 सालों तक विजयनगर को उसने क्या किया, उसकी साम्राज्य सीमा को फैलाने का प्रयास किया. कृष्णदेवराय सफल भी हुआ. अब कृष्णदेवराय की विजयों के बाद उसकी कल्चरल अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं. क्या थी उनकी कल्चरल अपॉर्चुनिटीज? ओके, आप एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए. कृष्णदेवराय 1509 to 1529 AD. 1509 कृष्णदेवराय became king of Vijayanagar, or you can note that he was thrown on Vijayanagar. 1512 AD, Raichur Dwab, that was conquered by Krishnadev Rai. Raichur Dwab was expanded from Krishna and Tungabhadra river. Between Krishna and Tungabhadra river, Raichur Dwab कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच स्थित था. पूरा दुआबा क्षेत्र था, फर्टाइल था. और ये रायचूर द्वाब के कारण ही
बहमनी और विजयनगर में एक लंबी लड़ाई चली और लास्ट तक ये मेन युद्ध का कारण बना। 1514 एडी गजपतियापुर उड़ीसा, 1520 बीजापुर, बीदर एंड गुलबर्गा 1520 के एडी के आसपास, और बहमनी किंग को उसने फ्री कराया महमूद शाह को, और उसने टाइटल थी यमन स्थापना 4 की टाइटल। ओके, अभी हम और टाइटल के बारे में फिर करेंगे, ये अभी मैं इसको डाल रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। अभी ये थी उनकी विजय, उनकी द्वारा जीते गए थी। अब उनके हम कल्चरल एक्टिविटी को देखते हैं, उन्होंने क्या किया। कृष्णदेव राय विजयों के बाद उन्होंने पुर्तगालियों से अपने संबंध अच्छे किए, जिसका मुख्य कारण था कि बीजापुर से लगातार उनकी शत्रुता बनी रही। घोड़ों का व्यापार अरब से हो रहा था, जिसको कंट्रोल कौन कर रहे थे? पुर्तगाली। तो विजयनगर के जो रिलेशनशिप थे, फॉरेन पॉलिसी थी, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ उसको अच्छे किए। पहला पॉइंट, गुड रिलेशन इस्टैब्लिश good relation with Portuguese, okay. Then after, for which purpose? पोर्तुगीज से संबंध अच्छे करने का कारण क्या था? एक तरफ तो बीजापुर से दुश्मनी और दूसरा तरफ से अरेबियन हाफ। ओके, दो चीजें, इसलिए उन्होंने पोर्तुगीज से क्या किए? अपने संबंध स्थापित किए, अच्छी की। फिर उन्होंने अपनी जो दूसरी विजय थी उनकी, जो दूसरा उनका एक मेन काम था, वो था 1510 में 1510 में अल्बुकर्क गवर्नर, पोर्तुगीज गवर्नर, ओके, पोर्तुगीज गवर्नर था। उसने क्या किया? उसने फादर लुई को भेजा। फादर लुई एक प्रिस्ट को भेजा। कहाँ पे? कृष्णदेव राय के दरबार में। फादर लुई को किस काम के लिए? भटकल में एक कारखाना बनाने के लिए। भटकल में फैक्ट्री की स्थापना। ओके, फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए। अब ये तो सिंपल चीजें थी। इन्होंने ये फॉरेन पॉलिसी में ले सकते हैं, इसको फॉरेन पॉलिसी में ले सकते हैं कि उन्होंने पुर्तगालियों से संबंध अच्छे किए, और उन्होंने उनके समय 1518 में अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसने फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा। कृष्णदेव राय के दरबार का नाम क्या था? कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय कार्ड भट्ट भुवन विजय। भुवन विजय में दरबार हो गया। ओके, तो अब यहां से उनके संबंध अच्छे हो गए। अभी उनकी और चीजों को देखते हैं। कृष्णदेव राय के प्राथमिक और क्या थी कल्चरल क्षेत्र में? कृष्णदेव राय ने नांगलपुर विठल स्वामी टेम्पल,
हजारा टेम्पल, हजारा टेम्पल, नांगलापुरम कर ले तो ठीक है। नांगलापुरम की स्थापना की किसके नाम पे? मदर के नाम पे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए। हजारा टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, देन आफ्टर मंडप, कई मंदिरों के मंडप, गोपुरम, अदर रिलीजियस बिल्डिंग, अदर रिलीजियस बिल्डिंग कृष्णदेवराय ने बनवाया। तो ये इनके आर्किटेक्चर वर्क पे, इनके क्रिएटिव वर्क पे नांगलापुरम मंदिर मदर के नाम पे बनवाया, विठल स्वामी, हजारा स्वामी मंदिरों का निर्माण कराया विजयनगर में। और फिर इन्होंने क्या किया, इनके अलावा इनकी और चीजें भी थी खासियत, आइए वो भी देख लेते हैं। कृष्णदेवराय एक अच्छे लेखक भी, वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ऑथर आल्सो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमुक माल्य लिखा, अमुक माल्य बुक लिखी, उनके बुक है या ऐसे लिखें, पहले क्लियर हो जाएगा। आप बुक करके लिखेंगे तो आपको नोट करने में आसानी होगी। बुक क्या लिख दीजिए, बुक के सामने लिखिए अमुक माल्य, तेलुगु में थी, पहली बुक की थी। इन्होंने लिखा जामवंती कल्याणम, संस्कृत। फिर उन्होंने लिखा तीसरी बुक उस परिणय कथा, संस्कृत। ये बुक उन्होंने लिखी, अमुक माल्य तेलुगु में, जामवंती कल्याण संस्कृत में, उस परिणय कथा संस्कृत में। आपके बुक में पेज नंबर 173 पे कुछ बातें लिखी गई हैं किंग्स एंड ट्रेडर्स के ऊपर। किंग्स एंड ट्रेडर्स के ऊपर अमुक माल्य में कुछ बातें लिखी गई हैं। अमुक माल्य में उन्होंने बताया है कि किस तरह का आचरण होना चाहिए व्यापारी का, किस तरह का आचरण होना चाहिए राजा का। यहाँ पे कृष्णदेवराय कई सारी अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने अमुक माल्य में इस बात का उल्लेख किया है कि रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत बल दिया। उन्होंने राजा को तालाब एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं और सारे सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करने की बात की कि राजा का ये ड्यूटी है, इस ड्यूटी ऑफ द किंग दैट ही ट्राई टू क्या करे, जनरेट, ट्राई टू मेड द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल वेलफेयर, आप इक्विपमेंट्स कह सकते हैं या वर्क कह सकते हैं, तालाब खुदवाना, नहरें बनवाना और सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था करना, शांति स्थापित करना, अन्याय न हो उसको देखना, लोगों के अंदर क्रिएटिव वर्क को प्रमोट करना, इन सारी चीज़ों के लिए। तो वही अमुक माल्य में कहते हैं कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक महान शासक होने के साथ कृष्णदेवराय विद्या के प्रेमी भी थे, इसीलिए कृष्णदेवराय के कुछ टाइटल्स भी हैं। कृष्णदेवराय की टाइटल क्या है, आइए टाइटल देख लेते हैं। बुक हमने देख लिया, कृष्णदेवराय की टाइटल भी देख लेते हैं, क्या क्या टाइटल्स थी। कृष्णदेवराय की टाइटल, उनकी उपाधियां क्या, पहला आंध्र भोज,
आंध्र भोज क्यों कहा गया उनको? क्योंकि वो विद्या के संरक्षक थे। क्योंकि कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवियों की एक सभा थी, जिसे अष्ट दिग्गज कहते थे। क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, ओके। अष्ट दिग्गज ये क्या थी? एक पोएट काउंसिल। उसमें सबसे अच्छे पोएट कौन थे? अल्लादी। नाम क्या था उनका? आपने कई बार सुना होगा, कई बार नाम आया होगा तेनालीरामा का, लेकिन उनके अष्ट दिग्गज की सबसे अच्छी कवियों में जो नाम आता है वो है पेडन्ना, अल्लादी। पेडन्ना, अल्लादी पेडन्ना उनके सबसे अच्छे कवियों में काउंट होते हैं। दूसरी व्यक्ति क्या थी इनकी? आपको मैंने बताया कि जस्ट उन्होंने यमन राज्य, यवनों को पराजित किया, बीदर और गुलबर्गा को पराजित करके बहमनी शासक महमूद शाह को उन्होंने क्या किया? जीता, और जीत करके फ्री कराया। इसलिए उन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य यवनराज स्थापनाचार्य की टाइटल थी। ओके, आंध्र भोज और यवनराज स्थापनाचार्य की उनकी टाइटल थी। कृष्णदेवराय संस्कृत और तेलुगु दोनों के विद्वान थे। कृष्णदेवराय को दोनों भाषाएं अच्छी से आती थी। कृष्णदेवराय ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। अपनी राजधानी में उन्होंने नांगलपुर नामक मंदिर बनवाया, जो तो मैंने बताया आपको, और उन्होंने एक विजयनगर को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए पूरा काम किया। कृष्णदेवराय के समय में कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आए, कौन कौन से आए आप बताइए? पेस, डोमिंगो पायस और बारबोसा। ये 2 फॉरेन ट्रेवलर्स जो कृष्णदेवराय के समय में आए थे, उन्होंने कृष्णदेवराय के समय के बारे में विस्तार से, यदि आप एक नंबर 173 डिटेल्स को पढ़ें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कृष्णदेवराय अपने प्रजा के बारे में क्या सोचते थे। जैसे कृष्णदेवराय, अब देखिए बुक में सोर्स 2 को देखिए, कहता है कृष्णदेवराय रूल्ड 1509 to 29, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर, composed the work on the statecraft in Telugu known as Amuk Malyat. About traders he wrote, a king should improve the harbors of his country and so encourage its commerce, that horses, elephant, the precious gems, the sandalwood, pearls and other articles are freely imported. He should arrange that the foreign sailors who land in his country on account of the storms, illness and the exclusions of the looked after in the suitable manner. Make the merchants of distant foreign countries who important elephants and goods horses be attached to yourself by providing them with daily audience presents and allowing decent profit. Then those articles will never go to your enemies. This descriptions, this paragraph clearly explained that Krishnadevaraya focused the trade. He want that the trade should be improved in our country because trade is the best medium to develop our economic system. ट्रेड सबसे अच्छा माध्यम है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बचा सकता है, इसलिए उन्होंने ट्रेड पे ध्यान दिया। राजा को उसने कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बड़े बंदरगाहों के निर्माण करना चाहिए, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे कैसी व्यवस्था हो जिसमें व्यापारी आराम से
अपने सामानों को ले आ सके और ले जा सके। राज्य की समृद्धि का एक बड़ा कारण है, एक बड़ा माध्यम है क्या, तो कहते हैं ये बंदरगाहों का निर्माण, बाजारों की व्यवस्था। इस तरह से कृष्णदेवराय की विजय। लेकिन कृष्णदेवराय की विजय के पश्चात, कृष्णदेवराय की विजय के पश्चात, कृष्णदेवराय के शासन काल के पश्चात, ऐसे कहें ज़्यादा बेटर है, आफ्टर द रेजिम ऑफ विजयनगर, सॉरी आफ्टर द रेजिम ऑफ कृष्णदेवराय, द विजयनगर एम्पायर वाज डिक्लाइंड, द ग्लैमरस, the pride, the power which was reached on the top level during Vijayanagar Krishnadevaraya regimes, after Krishnadevaraya it was declined. कहता 1565 1565 AD तालीकोटा, इसे राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं, बैटल का मैदान 1565 में विजयनगर वर्सेस बीजापुर या बहमनी थे, बहमनी एम्पायर में कौन कौन, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, ने मिलकर के विजयनगर को पराजित किया। अच्युत देवराय के समय राम राय के नेतृत्व में, जो राम राय के हाथों में वास्तविक सत्ता थी, अच्युत देवराय शासक थे, लेकिन राम राय ने इंटरफेयर किया बहमनियों में, पावरफुल न होने के कारण बहमनियों ने गुट बनाया और उन्होंने विजयनगर को पराजित किया और विजयनगर को बुरी तरह से लूटा। सीधे फ्रेडरिक कहता है कि किसी साम्राज्य का अंत उतना पूरा नहीं हुआ जितना विजयनगर का हुआ। फॉरगॉटन एम्पायर में उस बात का उल्लेख करते हुए कहता है कि विजयनगर जो अत्यंत ही वैभवशाली साम्राज्य था, वो इतनी बुरी तरह से दबाया गया जो कि पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह की बातें वो कहता है। सीजर फ्रेडरिक के बाद और भी फॉरेन ट्रेवलर्स उनको देखा था विजयनगर के अंत, और यहाँ से विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन किया। इसके बाद वहाँ पे नया राजवंश आता है, अरिवाडू राजवंश, अरिवाडू डायनेस्टी, और वहाँ पे अरिवाडू डायनेस्टी को, तिरुमल को स्थापित करके नई साम्राज्य बनाया और वो 1560 तक वो राज्य करता है। इस तरह से विजयनगर का पतन होता है। अपोजिट टू डिक्लाइन, उत्थान से पतन तक का पूरा इतिहास आज हम लोगों ने। फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे अमर नायक। आज के लिए इतना है, गुड बाय।